Hello everyone. In today's lecture, we'll be discussing psychological variables, psychological skills in quantitative research, and scoring and usage of GAD-7. Let's start the lecture. First thing which we need to understand is that what are psychological variables? Psychological variables क्या होते हैं? Psychological variables are the variables which doesn't have fixed patterns in terms of behavior. To make it simpler, इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइक वी यूज टू स्टडी वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स इन मैथ्स. रिमेंबर, तो मैथ्स में कांस्टेंट क्या होता था? जिसकी वैल्यू अनचेंज रहती थी. और वेरिएबल क्या होता था? जिसकी वैल्यू चेंज होती थी. x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 6. तो x क्या था? x वेरिएबल था. ठीक है. जबकि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या होता है? या वी कैन से ऑपोजिट ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? अ कांस्टेंट. राइट. सो साइकोलॉजी में we have behavioral patterns which varies from person to person. We all are different in terms of behavior, right? For example, my personality type is different from your personality type. My attention span is different from your attention span. My intelligence is different from your intelligence. So we all are different in terms of behavior. इसलिए साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल की डेफिनेशन है वो क्या है? They are the characteristics, traits, or attributes of a person which varies from other individuals. Then I have written psychological variables varies within the same person as well over time. Now, what does this mean? If we analyze ourselves, so आज का जो हमारा behavior है, that is different from the behavior when we were 9-year-old. ठीक है. So एक ही individual है, उसका जो अटेंशन स्पैन 9 ईयर की एज में है वो उसका अटेंशन स्पैन 25 ईयर की एज में नहीं होगा. अटेंशन स्पैन, मेमोरी और डिफरेंट बिहेवियर्स विद टाइम विद इन द सेम इंडिविजुअल भी वेरी कर रहे हैं और वो हमें दूसरे इंडिविजुअल से भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो क्या हो गए ऐसे वेरिएबल्स? साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हो गए. ठीक है. So psychological variables are not only those variables which are differentiating our behavior from others, बल्कि ये वो variables भी हैं जो within the same individual with time change होते हैं. जैसे कि memory. Children की जो memory है वो adult से sharp होती है और जो old people होते हैं या old age होती है तो उसमें memory problems आते हैं. In fact एक disease है which is dementia in which the memory starts getting weak. ठीक है. सो ये आपकी डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स की. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल इन वेरी सिंपलर वे. ठीक है. हम इसको सिंपलर टर्म्स में, सिंपलेस्ट टर्म्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल वेरिएबल की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? Attention span, it's a psychological variable. Yes, it is. ठीक है. One individual, let's say, is able to pay attention on some lecture for 1 hour. Towards that same lecture, किसी दूसरे individual का attention span सिर्फ 45 minutes है. Getting my point. तो attention span individual to individual क्या करता है? Vary करता है. तो attention span क्या हो गया? Psychological variable हो गया. In the same way, let's look at the second example. Second example हमारे पास है intelligence की. Intelligence again, different individuals have different intelligence. ठीक है. तो intelligence क्या है? Psychological variable है. Personality type. Okay. कुछ individuals जो हैं वो social होते हैं, extroverts होते हैं और कुछ जो है वो introverts होते हैं. तो personality type क्या है? Psychological variable है. क्यों है? बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की टाइप जो है वो वेरी कर रही है. गेटिंग माई पॉइंट. मेमोरी क्या है? साइकोलॉजिकल वेरिएबल है. स्ट्रेस लेवल्स हम सबके डिफरेंट हैं. ठीक है. अगेन इसमें एक और साइकोलॉजिकल वेरिएबल भी हो सकता है. लाइक देयर आर मेनी. आई हैव जस्ट रिटन फ्यू ऑफ देम. अगर आप इसको सोचें सो देयर आर मेनी. ठीक है. इसके अलावा भी स्ट्रेस टाइप्स भी तो एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल हो सकता है. Because different individuals have different types of stress.
कुछ लोगों का जो स्ट्रेस होता है वो रिलेटेड टू एकेडमिक्स होता है, कुछ लोगों का जो स्ट्रेस होता है वो रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ होता है, कुछ लोगों का जो स्ट्रेस है वो रिलेटेड टू वर्क प्लेस होता है। सो स्ट्रेस की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सो टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो स्ट्रेस लेवल है वो भी वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, राइट? ओके, अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि साइकोलॉजिकल स्केल्स क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करते हैं साइकोलॉजिकल स्केल्स यूज करके। तो साइकोलॉजिकल स्केल्स क्या होते हैं? अब ये जो हमारे पास साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, इन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए वी नीड टूल्स, एंड दोज टूल्स आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल स्केल्स। सो साइकोलॉजिकल स्केल्स की लेट्स राइट द डेफिनेशन कि साइकोलॉजिकल स्केल्स होते क्या हैं, राइट गाइस? सो साइकोलॉजिकल स्केल्स, साइकोलॉजिकल स्केल्स, साइकोलॉजिकल स्केल्स क्या हैं? दे आर द टूल्स which are used to measure and quantify psychological variables, right guys? Okay, so psychological scales क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल स्केल्स टूल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को क्वांटिफाई करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट कि ये स्केल्स हमें मिलेंगे कहाँ से? हु मेक्स दीज स्केल्स? सो ये जो स्केल्स हैं दे आर डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस, ठीक है? ये जो डेवलप्ड होते हैं इसको रिसर्चर्स बनाते हैं। सो डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस, ठीक है? साइकोलॉजिकल स्केल्स को कौन बनाता है? रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस बनाते हैं। एंड साइकोलॉजिकल स्केल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये वैलिड और रिलायबल होते हैं, ठीक है? दे आर वैलिड एंड रिलायबल, दे आर वैलिड एंड reliable, and you should always use valid and reliable psychological scales to measure your psychological variables, right? अब ये जो psychological scales हैं, मैम हमें ये psychological scales कहाँ से मिलेंगे? So these psychological scales can be accessed through different psychological websites. हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल स्केल्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल स्केल्स जो हैं वो फ्री टू यूज हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू गूगल सर्च, एंड गूगल सर्च पे जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है आप उसके स्केल के बारे में गूगल से पूछें। लेट्स से स्ट्रेस, सो यू कैन टाइप ऑन गूगल साइकोलॉजिकल स्केल फॉर स्ट्रेस, तो गूगल आपको वो सारे रिसर्च आर्टिकल्स दे देगा जिन आर्टिकल्स में अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम रिसर्च और क्लिनिशियंस ने अप्रूव और वैलिड एंड रिलायबल स्केल्स बनाए हैं, ठीक है? तो अगर आपको कोई ऑथेंटिक स्केल मिल जाता है सो यू कैन यूज दैट फॉर योर रिसर्च। इसके अलावा कुछ स्केल्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो उनको फिर आपको परमिशन चाहिए होगी एक्सेस करने की। सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो लाइब्रेरीज हैं उनको एक्सेस होता है उन स्केल्स पे, तो आपको सम हाउ ये टूल्स मिल जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? और फिर उन टूल्स को यूज करके आप जो है वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर, ये जो साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं इन साइकोलॉजिकल स्केल्स को यूज कैसे किया जाता है? सो फर्स्टली तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि साइकोलॉजिकल स्केल्स जो होते हैं इन साइकोलॉजिकल स्केल्स में स्टेटमेंट्स होती हैं। दे आर नॉट द स्केल्स लाइक वी यूज द वंस इन नेचुरल साइंसेज। ये वो वर्नियर कैलिपर और वो मीटर रूल वाले स्केल नहीं है कि कोई आपको मैंने एक पकड़ा दिया है रूलर और उससे आप मेजर कर रहे हैं, नहीं। साइकोलॉजिकल स्केल्स कंटेन स्टेटमेंट्स, ठीक है? साइकोलॉजिकल स्केल्स में स्टेटमेंट्स होती हैं और ये स्टेटमेंट्स क्वेश्चनेयर की तरह होती हैं, ठीक है? और उन स्टेटमेंट्स के आपको आंसर्स देने होते हैं,
और उन स्टेटमेंट्स को हम साइकोलॉजिकल स्केल की टर्मिनोलॉजी में आइटम्स कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एंड डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्केल्स, डिफरेंट psychological scales have different number of items। ठीक है, अब आइटम्स जो है वो हर साइकोलॉजिकल स्केल में डिफरेंट होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल स्केल में सिर्फ 7 आइटम्स हैं, कुछ में 21 है, एंड सो ऑन, इट वेरीज। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइकोलॉजिकल वेरिएबल को मेजर करने के लिए कौन सा साइकोलॉजिकल स्केल यूज कर रहे हैं। हर स्केल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, एंड आइटम्स क्या होते हैं? द स्टेटमेंट्स ऑफ दैट स्केल। ठीक है, अगेन ये जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं इनकी स्कोरिंग की इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई होती हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको वो स्केल प्रोवाइड करेगा तो उस स्केल को यूज करने की इंस्ट्रक्शंस आपको ऑथर ने दी हुई होंगी, राइट? उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम स्कोरिंग करते हैं। सो डिफरेंट स्केल्स हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कोरिंग ऑफ आइटम्स प्रोवाइडेड बाय ऑथर। जो उस स्केल का ऑथर होता है वो ऑथर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने स्कोरिंग कैसे करनी है आइटम्स की, एंड देन दोज स्कोर्स आर इंडिकेटिंग व्हाट। ठीक है, फिर आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्केल्स हैं, साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल स्केल्स, सो स्केल्स के जो स्कोर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? Let's say for disorder, if we are using any scale, psychological scales can be used to find out severity of disorders। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल स्केल है वो एंजाइटी का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी स्कोरिंग आपको एंजाइटी की सिवियरिटी बताएगी कि वेदर समवन हैज माइल्ड एंजाइटी, मॉडरेट एंजाइटी या सेवियर एंजाइटी। बट डेफिनेटली फर्दर टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये होता है साइकोलॉजिकल स्केल। कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं कर सकते, उन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स पे हम साइकोलॉजिकल स्केल्स नहीं लगा सकते, राइट? सो some psychological variables like lived experiences, let's say कि सेक्सुअल अब्यूज के सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रहे हैं लोग, तो उन सब के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। सो फॉर लिव्ड एक्सपीरियंसेस वी कांट यूज अ साइकोलॉजिकल स्केल। गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे अगर हमने देखना है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, अगेन सब इंडिविजुअल्स के ये डिफरेंट होंगे, तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिवली हम रिसर्च इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते। तो इस तरह के वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दैट वील डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूज्ड फॉर सच वेरिएबल्स, फॉर सच साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। ठीक है, सो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी कवर्ड हो गया। सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, हमने बात की है साइकोलॉजिकल स्केल्स की, और हमने अब बात करनी है कि GAD-7, व्हाट इज GAD-7? GAD-7 एक साइकोलॉजिकल स्केल है। सो GAD-7 को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं एंड GAD-7 की स्कोरिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स लुक GAD-7 now. Up till here we have discussed psychological variables and psychological scales in quantitative research. अब GAD-7 I'll show you कि GAD-7 जो है वो कैसे दिखता है, या GAD-7 जो है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। So this is GAD-7, right? GAD-7 you guys can see on the screen. ये GAD-7 जो है दिस इज अ फ्री स्केल,
and you guys can search this scale on Google. If you go to Google search and type GAD-7 scale for anxiety, तो Google आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स की लिस्ट दे देगा, और उसमें से कोई सा भी PDF अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास GAD-7 एंजाइटी का स्केल खुल जाएगा। ये है वन ऑफ द साइकोलॉजिकल स्केल। और कौन सा साइकोलॉजिकल वेरिएबल को GAD-7 मेजर कर रहा है? इट इज यूज टू मेजर एंजाइटी। GAD-7 इज यूज टू मेजर एंजाइटी। तो GAD-7 एक एंजाइटी का साइकोलॉजिकल स्केल है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज GAD-7? ठीक है, तो वील फर्स्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट इज GAD-7. GAD-7 is a psychological scale which is used to measure severity of anxiety in general settings. Getting my point? क्योंकि you all know this thing, जो हमारे बैचलर्स के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि अगर हमारी जो एंजाइटी है वो स्पेसिफिक हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो फोबिया बन जाता है। बिकॉज फोबिक एंजाइटी इज द स्पेसिफिक एंजाइटी। जैसे क्लास्ट्रोफोबिया एक स्पेसिफिक एंजाइटी है जो कि कन्फाइंड स्पेसेस की एंजाइटी है। जनरलाइज्ड एंजाइटी आपकी जनरल सेटिंग्स के अंदर एंजाइटी को देखता है स्केल, ठीक है? एंड स्कोर्स ऑफ GAD-7 are used to understand whether anxiety is mild, moderate और severe। ठीक है, कि आपकी जो एंजाइटी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवियर है, ठीक है? GAD-7 जो है 7 आइटम स्केल है, ठीक है? GAD-7 इज अ 7 आइटम स्केल। एंड आइटम मैंने आप लोगों को बताया है कि आइटम क्वेश्चंस को कहते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ द साइकोलॉजिकल स्केल को हम आइटम्स कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स सी कि हम स्कोरिंग GAD-7 की कैसे करते हैं। अब आप GAD-7 में देख रहे हैं कि वी हैव 7 स्टेटमेंट्स, और फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर ईच आइटम आउट ऑफ 7, ठीक है, देयर आर 4 रिस्पॉन्सेज, ठीक है? आपको नजर आ रहे हैं कि 4 रिस्पॉन्सेज हैं। नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन हाफ द डेज, नियरली एवरी डे। और इन रिस्पॉन्सेज की न्यूमेरिकल स्कोरिंग दी हुई है, ठीक है? नॉट एट ऑल को हम 0 स्कोर देंगे। सेवरल डेज अगर हमारे पार्टिसिपेंट ने या क्लाइंट ने पिक किया है तो हम 1 का स्कोर देंगे। मोर देन हाफ द डेज है तो 2, एंड नियरली एवरी डे 3 का स्कोर है, ठीक है? अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं, जैसे कि जो हमारा एक और चीज इसमें आपने देखनी है, ओवर द लास्ट 2 वीक्स हाउ ऑफन यू हैव बीन बॉदर्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सो ये लास्ट 2 वीक्स के अंदर उसको जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस हुई हैं, जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुई हैं इसमें से, वो हमने इधर रिकॉर्ड करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? सो स्टेटमेंट 1 है फीलिंग नर्वस, एंशियस और ऑन एज। लेट्स से के जो इंडिविजुअल है ही फेल नर्वस, एंशियस एंड ऑन द एज फॉर मोर देन हाफ द डेज, तो हम 2 को टिक कर देंगे। नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरीइंग, लेट्स से कि इंडिविजुअल में 3 को टिक किया है या सर्कल किया है। वरिंग टू मच अबाउट डिफरेंट थिंग्स, लेट्स से कि इसको भी उसने 3 पे किया है, ठीक है? वरिंग टू मच अबाउट डिफरेंट थिंग्स इज डन। ट्रबल रिलैक्सिंग उसने 0 पे टिक किया है, ठीक है? बीइंग सो रेस्टलेस दैट इट इज हार्ड टू स्टे स्टिल, 1 पे टिक किया है उसने। बिकमिंग इजली अनॉयड और इरिटेबल, 3 पे टिक किया है। एंड फीलिंग अफ्रेड इफ समथिंग ऑफुल माइट हैपन, लेट्स से कि उसने 2 पे टिक किया है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इन सारे कॉलम्स के स्कोर को टोटल करना है। नॉट एट ऑल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगेन ये वेरी करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट। ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी है। सो लेट्स से कि यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वो 0 है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वो 1 है, ठीक है? यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वो 4 है, 2 + 2 is 4। और यहाँ पे जो टोटल स्कोर है 3 + 3 is 6, एंड 6 and 3 is 9।
तो यहाँ पे जो टोटल स्कोर है वो 9 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 1 + 4 = 5, अब आपने 5 और 9 को ऐड कर लेना है टू फाइंड द टोटल स्कोर। सो टोटल स्कोर जो होगा वो आपका इन सबको ऐड करके होगा। सो 0 + 1 + 4 + 9। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल स्कोर आएगा, 9 एंड 1 = 10 एंड 10 + 4 = 14। ठीक है, 14 आपका टोटल स्कोर हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि जो टोटल स्कोर 14 है, ये 14 हमें क्या बता रहा है कि एंजाइटी माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवियर है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, वील स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे जो आपके टोटल स्कोर का ऑप्शन है, इस टोटल स्कोर के ऑप्शन में वील राइट 14, कि हमारा जो टोटल स्कोर है वो 14 है। ठीक है, हमारा जो टोटल स्कोर है वो 14 है। 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब वील गो डाउन, और यहाँ पे हमें इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये हर स्केल का आपको मैनुअल मिल जाएगा जिसने गाइड किया हुआ हो। तो ये 0 से 4 के अंदर अगर आपका स्केल है तो मिनिमल एंजाइटी है, 5 से 9 की रेंज में है तो माइल्ड एंजाइटी है, और 10 से 14 है तो मॉडरेट एंजाइटी है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंडिविजुअल हैज मॉडरेट एंजाइटी। ठीक है, तो आप लिखोगे इधर इंडिविजुअल, अच्छा ये लिखना नहीं है, ये आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे। जैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाते हैं, दो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उनको पता है कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रही हूँ, रिपोर्ट में आपने लिखना है, इस पे कुछ नहीं लिखना कि इंडिविजुअल हैज मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी, राइट। तो ये तो हो गया। अब आप अगर इसमें देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच वी नीड टू सी। आपको यहाँ पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो बॉक्स है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉक्स? दिस बॉक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओवरऑल स्कोरिंग। स्कोरिंग और सिवियरिटी आपने इस स्कोर की बेसिस पे डिसाइड करनी है। ठीक है, आपने इस उसकी बेसिस पे डिसाइड करनी है। ठीक है, तो मिस ये किस लिए दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है टू चेक द ओवरऑल फंक्शनल इम्पेयरमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस बॉक्स is used to investigate overall functional impairment, right guys? तो ये ओवरऑल फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो आपकी है ना, ये उस इम्पेयरमेंट को मेजर कर रहा है कि आपकी एवरीडे लाइफ में डिसफंक्शनलिटी कितनी है, जो हमें 4 Ds ऑफ साइकोपैथोलॉजी बताते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि वो इंडिविजुअल यहाँ पे पिक कर रहा है वेरी डिफिकल्ट। If you checked any problems, how difficult they have made it for you to do your work, take care of things at home or get along with other people. Let's say कि उसने very difficult किया है, अब आप उसको further diagnostic tests के लिए recommend कर दोगे। Getting my point? तो इसका पर्पस ओवरऑल फंक्शनलिटी चेक करना होता है कि कहीं उस इंडिविजुअल को और साइकोलॉजिकल टेस्ट की नेसेसिटी तो नहीं है, नीड तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप इसमें एक चीज देखें कि ये जो स्केल है इसके नीचे आपको सोर्स का पूरा वो दिया हुआ है कि ये कहां से स्केल लिया है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक। वी ओनली यूज ऑथेंटिक स्केल्स, वैलिड स्केल्स, रिलायबल स्केल्स जो कि एविडेंट हैं फ्रॉम रिसर्च। गेटिंग माई पॉइंट? एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल, मतलब क्लिनिकल रिसर्च से उनकी एविडेंस जो है वो प्रूवन होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप सो कि आपको जो है वो ये तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग विद साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यू ऑल आर क्लियर आई होप सो विद साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्केल्स, राइट, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट GAD-7। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल वेरिएबल के और स्केल्स भी हैं, एंड हर स्केल की अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन एंड स्कोरिंग है।
So that's all from today's lecture, and I hope so that you found my lecture helpful and useful. अगर आपको मेरा lecture useful लगा है, so please show love, like, share and subscribe. See you in the next lecture.